Have you ever wondered what really goes into creating that perfect smile? So stay tuned because today we will take a deep dive into the field of orthodontics, which is the art of aligning or straightening your teeth. Today, with us, we have a very esteemed guest, practicing orthodontist in Ahmedabad, in the area, specifically Sheila, South Bhopal and Bhopal, and she is a certified Invisalign provider. So she will help you design your smile and will help you clear all your doubts, whether it is concerned regarding braces or clear aligners. And trust me, after this podcast, you will never look at your smile the way you were looking it before. Hello and welcome to the new episode of Smile Podcast, and welcome Dr. Naisargi Mehta. Thank you for being here and giving us a great insight about the art and science of aligning teeth. So before knowing about anything else, ये एक सालों से नहीं मिथ चला रहा है कि दांत सिर्फ तब सीधे करवाओ कि शक्ल पे अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर यू नो कि इट विल बी अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, यू विल लुक बेटर. बट व्हाट इज यू नो द ग्राउंड रियलिटी कि अलाइनमेंट की जरूरत क्यों है? So honestly, I've heard this from so many people. In fact, कुछ लोग तो alignment भी focus नहीं करते. They're like, मुझे ये एक दांत ऊपर है ना, वो cute लगता है. But orthodontics is not about alignment. आपके दांत जब टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो it causes a lot of problems overall आपके functionality में. So there's three bases on which orthodontics works. एक है alignment for your aesthetics, एक है alignment for your functionality, and one is for stability. Functionality means कि आपके डे टू डे रूटीन में आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्पीच, स्वॉलोइंग, ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे अफेक्ट हो रही हैं आपके टीथ अलाइनमेंट की वजह से. एंड स्टेबिलिटी इज कि वंस योर ट्रीटमेंट इज फिनिश्ड, उसके बाद में आपका ओवरऑल एक जॉ एंड टीथ स्टेबिलिटी कैसा है, दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी. सो ऑर्थोडोंटिक्स इज बेसिकली दीज थ्री थिंग्स कंबाइंड. इट्स नॉट कि मेरे दांत आगे से सीधे ही लगते हैं तो मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है. अगर आगे से सीधे भी है तो भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पीछे की तरफ आपके दांत प्रॉपर सेटलमेंट में ना हो, एंड दैट विल कॉज मेजर प्रॉब्लम्स लेटर इन लाइफ. एंड यूजुअली यू नो ये चीज का पता हमको चलता है इन लेट 40s कि एक्चुअली इट्स अ बिगर प्रॉब्लम. ऑल्दो एट 40s आल्सो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, बट if you're aware at an earlier age, let's say 10-12 years, makes a lot of difference. Makes a lot of difference. Lot of I've difference. Seen, yeah. 40 years पे आप alignment करवा सकते हो, definitely it's not a problem. But जो changes आप growing phase में देख सकते हो, while you're still in that phase जहाँ आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं, आपका overall organs grow कर रहे हैं, yeah. वो phase में जो आप changes create कर सकते हो, वो इतने स्टेबल और इतने परमानेंट होते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म ऑटोमेटिकली उसमें फिर आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ता. इट्स नॉट लाइक कि ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद सोच रहे अभी ये करना है, अभी वो करना है. वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाएगा सब कुछ, एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ यू देन. Exactly. And one thing that I've noticed as compared to crooked teeth, if we talk about just basic oral hygiene, when you have aligned teeth, सबसे पहले एडवांटेज है हाइजीन मेंटेनेंस. बिल्कुल, कितना इजी हो जाता है. बिल्कुल. सो जनरली आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड एक जनरल स्टेटमेंट है कि यू मस्ट गेट योर टीथ क्लीन एटलीस्ट वंस अ ईयर. सो वो जो स्टेटमेंट है दैट होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर पीपल जिनके दांत ऑलरेडी सीधे हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं. exactly. उनके लिए तो दिस स्टेटमेंट वो तो ऐसा है कि get your teeth clean once every 6 months or 4 months even, क्योंकि इतना जल्दी वहां पे plaque build up होता है, your brush is not able to reach spaces, दांत एक दूसरे के ऊपर overlap कर रहे हैं, so surfaces of your teeth are getting covered by other teeth. वहाँ brush आपका reach नहीं कर रहा है, in fact वहाँ पे ज्यादा food accumulation भी हो रहा है, तो plaque deposit बढ़ेगा, calculus बढ़ेगा, and it will ultimately lead to caries. Yeah. But the science of aligning teeth is like more than 50-70 years old. Like, but how does teeth alignment work? वो सीधे होते कैसे हैं? What is the process? So, if you take us through it. Yeah, so there's multiple types of treatment options available. जो बहुत पहले से there are things जो बहुत पहले यूज की जाती थी, अभी वो अलग तरीके से फिर यूज होने लगी, एंड देन अभी इवन न्यूअर अप्लायंसेस जैसे इफ आई गेट इनटू इट, सबसे पहले एक वो बेग्स करके आता था, व्हिच इज ऑब्सोलीट नाउ, व्हिच इज कंप्लीटली ऑब्सोलीट. वो अभी कोई यूज नहीं करता है. दैट वाज वेरी टेक्निक स्पेसिफिक. उसके बाद में आए ब्रेसेस जो अभी हम जनरली देखते हैं, कन्वेंशनल ब्रेसेस. ब्रेसेस में भी अगेन बहुत सारे टाइप है. मेटल ब्रेसेस रेगुलर विद योर वायर्स, इट हैज मल्टीपल टाइप्स.
तो उसका भी मैकेनिक्स अलग है. What they basically do is कि वो जो वायर्स होते हैं they have a memory retention, तो वो जो है एक अपनी शेप में आने की कोशिश करते हैं. So when your teeth are malaligned, वो वायर को डी-शेप करके हम एंगेज करते हैं टूथ के साथ में, and then that wire tries to come in its natural position, जो जहाँ उसको मेमोरी है कि मुझे इधर आना है, and it brings the tooth along with it. And then उसके बाद में अभी clear aligners, तो I think everybody knows about clear aligners these days. एंड उनका भी मैकेनिक्स एकदम अलग है. सो दैट इज बेसिकली कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आप ले रहे हो, उस हिसाब से आपका टीथ अलाइनमेंट होगा. राइट. एंड जब टीथ को उनकी पोजीशन पे आना है तो देयर इज अ सर्टेन फोर्स व्हिच you give to that particular case. And how and does it is that very specific. It is very specific forces. That is the reason we say कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, because each tooth, individual tooth and each individual patient is very different. कि कितना फोर्स कौन सा पर्टिकुलर टूथ है उस पे लगाना है. ऑल्सो एक ही टूथ है बट वो आपका है और किसी दूसरे पेशेंट का है, तो उसका भी फोर्सेस अलग अलग होगा. इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स. Bone बोन density. हेल्थ, बोन हेल्थ, पेरियोडोंटल कंडीशन, gum health, everything. वो सब देख के फोर्स डिसाइड होता है. Wonderful. But अगर force exceed होता है, let's say कि someone who is not a certified orthodontist, if the force exceeds a certain limit, तो क्या problems आ सकती है? As in, it's a huge topic. It's a huge topic. But then एक general उसको उसमें डालें तो अगर force ज़्यादा हो जाएगा तो there's a possibility, simple possibility देखें तो ये कि वो tooth move करना बंद कर देगा, और उसके और ज़्यादा grave जो वो हो सकते हैं, consequences हो सकते हैं, वो ये हो सकता है that the tooth may become loose, it will come out of the socket. वो ऐसे होगा कि आपका जो root है ना वो गलने लग जाएगा ऊपर से, and then once the root starts to dissolve, it loses its grip and the tooth becomes loose and falls off. So, but having said that, if done by a good professional, orthodontic treatment can be a game changer for life. Yes, definitely. And I heard this through so many people के मैंने सुना है कि ट्रीटमेंट होने के बाद दांत वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं. Relapse is definitely a very big aspect. उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी है. लेकिन अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली हुआ है, if you whatever instructions are given to the patient follows those instructions, and treatment overall stability जैसे मैंने बताया था उसको ध्यान में रख के अगर ट्रीटमेंट टोटल आउटकम दिया गया है, then relapse is not a case. And particularly जितना early on आप ट्रीटमेंट कराते हैं, जितनी आप growing age में ट्रीटमेंट कराते हैं, उतना उसका स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा रहता है. So relapse is not a problem if it is done well. If it's done well, that's the most important point. If it's done by a good professional, so orthodontics actually can be a game changer for a person in terms of hygiene as well as personality. It's not just कि आप कैसे दिख रहे हो, it's also about the confidence. It's about how you're able to maintain your teeth on regular basis. And अभी ये तो हमको पता है कि it's necessary, but इसका monitoring कैसे होता है? जैसे अभी patient growing है, let's say I have a kid who is X years of age. So when would you expect me कि मैं उसको आपके पास ले आऊं for an orthodontic treatment or orthodontic monitoring? Right. So ideally the first appointment should be जब उसका पहला दूध का दांत गिरे and permanent just आने लगा हो या ऐसा हो डिले. सो एक और चीज जो बहुत रिसेंटली हम देख रहे हैं, बहुत बच्चों में लाइफस्टाइल कंडीशन है, बट इट्स दैट कि उनका या तो दूध का दांत गिरा ही नहीं है, परमानेंट इरप्ट हो गया है, या डीके हो गया था और वो बहुत जल्दी फॉल ऑफ हो गया, तो जो स्पेस वहां अवेलेबल थी वो बंद हो गई. सो परमानेंट जो है वो बाहर ही नहीं आ पाया, अंदर ही कहीं फंसा. ऑलमोस्ट एवरी वीक ऐसा एक आध केस हमारे ऑलमोस्ट एवरी वीक. दिस इज जस्ट लाइफस्टाइल और कुछ उसमें देयर इज नथिंग मेजर टू इट, बट ये हो रहा है. But some parents are very conscious about it. They take care really well कि इसका ये वाला दूध का दांत नहीं गिरा और परमानेंट आने लगा है. What should I do? So they are well aware of it. But some people are like कि अपने आप गिर जाएगा. Let's see future में क्या होगा. They don't know about the consequences. So जब आपका first permanent tooth erupt हो रहा है, वो एज पे आप कंसल्ट करें, because many times ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टूथ में ही कोई माल ऑक्लूजन हो. सो इन दैट केस उसी पॉइंट पे सिर्फ उसी एक टूथ को करेक्ट किया जा सकता है.
सो वन इज दैट. फिर कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलरली जैसे अगर हम बात करें गुजरात महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न जोन है, उसमें एक बहुत ही पिक्यूलियर फेस का जो एक टेंडेंसी है वो ये है कि जो लोअर जॉ है थोड़ा पीछे रह जाता है. दैट इज क्लास 2. इट इज कॉल्ड क्लास 2 इन आवर मेडिकल बुक्स के. क्लास 2 टेंडेंसी है, लोअर जॉ पीछे की तरफ रह रहा है. तो वो जो प्रॉब्लम है ना, उसके वजह से और बहुत हो सकता है. दूसरा ये कि उसका जैसे कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चा है ना मेरा मुंह खोल के सोता है. व्हेन योर लोअर जॉ इज बैकवर्डली प्लेस्ड, नो, आपका जो एयरवे है बच्चे का वो भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो बच्चा मुंह खोल के ब्रेथ लेने की कोशिश करता है. सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड कि व्हाइल द चाइल्ड इज ग्रोइंग, अगर हम वो करेक्ट कर देंगे, अगर हम गाइड कर देंगे जॉ को आगे की तरफ, क्या तो ऑटोमेटिकली एक तो उसका बाइट करेक्ट हो जाएगा, वो जो टीएमजे इश्यूज आगे जाके उसको लाइफ में आ सकते हैं वो नहीं आएंगे, एंड एयरवे भी इम्प्रूव हो जाएगा. सो इट्स नॉट लाइक हर बच्चे में ये केस है, बट देन जिसमें है उसमें हम करेक्ट एज पे इंटरवीन कर सकते हैं. या एंड समटाइम्स अर्ली इंटरवेंशन will reduce the cost of treatment drastically. Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. because then अगर एक इंडिविजुअल टूथ पे आप करेक्शन कर रहे हैं, you're not tying all the teeth together. apart from cost, overall treatment duration कितना कम हो जाता है, because orthodontic correction in all your teeth takes a minimum of 1 year. okay, with aligners of course वो टाइम थोड़ा रिड्यूस हुआ है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है इस फील्ड में, वैसे वैसे टाइम रिड्यूस हो रहा है, बट स्टिल एक सिंगल टूथ में करेक्शन कैन बी अचीव्ड इन अ मंथ. And besides, the child is growing, the bone is very malleable, so we can direct bone the growth we want in a child. Definitely बिल्कुल. वो I don't know if you've seen this, वो कहीं ईस्टर्न स्टेट्स में वो देखा है कि वो नेक में रिंग लगाते हैं तो नेक उनका लंबा रहता है. I don't know if you've seen that. Yeah, so it is a concept जो बहुत पहले से चला आ रहा है. ऑर्थोडोंटिक्स वर्क्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट कि वो नेक पे रिंग लगाया, नेक लंबा हो गया, बिकॉज दिस इज ग्रोथ के टाइम पे ही आप उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो डिजायर्ड पोजीशन है वहां पे आके स्टॉप करता है. Okay. Something new I came to know today. But अभी पेशेंट फर्स्ट परमानेंट टूथ आ रहा है तब तो आया ही है, बट हाउ ऑफन शुड द चाइल्ड विजिट? Yeah, so that is something that the orthodontist will guide you in your first visit only. कि अगर ऐसा लग रहा है ना कि एक टेंडेंसी है, so they'll let you know कि okay, एक कुछ टेंडेंसी लग रहा है and you should visit once in every 6 months or once in every year, once in a year or something like that. तो it depends patient to patient. Ideally once a year तो आप रखिए ही वैसे भी dental visit, because while the child is growing और बहुत सारी चीजें होती हैं, नए permanent teeth आ रहे हैं, कोई भी केरियस टूथ, बिकॉज कई बार बच्चों में पेरेंट्स का क्या एक वो रहता है कि मिल्क टूथ में सड़न हुआ, दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ, आई नो, ये तो गिर ही जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट लीड्स टू केरीज इन द परमानेंट टूथ, डेवलपिंग टूथ में. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाइल द चाइल्ड इज ग्रोइंग वंस अ ईयर एक डेंटल विजिट तो आपको रखना ही है. एंड देन ऑफ कोर्स जब आपकी फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक विजिट होगी तब आपको प्रॉपर्ली पूरा गाइड किया जाएगा, व्हेन ऑल you need to bring your child in, क्या क्या करने की जरूरत है. इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि बच्चे को हम वही 6-7 साल में या 10 साल में भी फॉर दैट मैटर कोई ट्रीटमेंट दे. इन सम केसेस भी से कि आपको जरूरत नहीं है, परमानेंट जब उसके सारे आ जाए तभी आप ट्रीटमेंट कराएं, बट देन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इट नीड्स टू बी डन. ट्रू. हैविंग सेड दैट, preservation of milk teeth is very essential. I recently saw a case where patient had multiple carious teeth, but parents या family members जो भी है, they were like कि अभी इसको बचा के क्या फायदा, ये तो गिरने ही वाले हैं और इसको तो 2 साल बाद परमानेंट दांत आने वाले हैं, बट दे आर द फाउंडेशन. अगर वो चले गए तो इमेजिन द कॉम्प्लिकेशंस अपार्ट फ्रॉम एक जनरल डेंटल पर्सपेक्टिव वो तो है ही, मतलब केरियस उसका इन्फेक्शन बोन में जा सकता है, एंड मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन, ऑफ पेन आल्सो, बट वो कैसा कभी कभी कि अभी ये दांत दुख रहा है तो इसका ही ट्रीटमेंट करवा देते हैं, रेस्ट जब होगा तब देखा जाएगा. सो होगा तब देखा जाएगा वाली मेंटालिटी इफ यू पुट इन हियर, it leads to major problems later. और फिर अपार्ट फ्रॉम, जैसे मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल डेंटल पर्सपेक्टिव, अगर हम सिर्फ ऑर्थोडोंटिक्स के ऊपर फोकस करें
तो जैसे कि बच्चे का दांत सड़ के कई बार ऐसा होता है कि अपने आप वो फॉल ऑफ हो जाता है, सडन है एकदम, या तो सिर्फ एक रूट बचा है उसको और कुछ बचा नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज जो नेबरिंग टीथ है ऑटोमेटिकली हमारे ये टीथ का टेंडेंसी है, यू नो दैट, To close the space. यस. सो wherever it gets space they try to close it. अभी वहां पे वो क्राउन खत्म हो गया, दिस जस्ट अ रूट. सो these neighboring teeth they try to come along closer और वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, बहुत थोड़ा सा स्पेस बचा या ऑलमोस्ट पूरा ऑक्यूपाई हो गया. जो परमानेंट टूथ वहां आना चाहिए उसके लिए जगह ही नहीं बचा, तो क्या होगा, वो अंदर ही हड्डी के अंदर फंसा हुआ है, वो दांत बाहर ही नहीं आ रहा है, या तो फिर बाहर आ रहा है तो किसी दूसरे पोजीशन में, कहीं दूसरी जगह जहां होना नहीं चाहिए वहां बाहर आ रहा है. Yeah. सो देन दैट इज दैट कि आप एक जिस पॉइंट पे जिस चीज को ट्रीट करने की जरूरत है उसको उस पॉइंट पे ट्रीट नहीं करोगे तो आगे जाके आपका कॉस्ट भी बढ़ना है, आपका ओवरऑल ड्यूरेशन भी बढ़ना है, multiple things. So one simple formula could be visit your dentist once in 6 months or at least 1 year. Yes. To be safe, to be on the Yes. safer side. So that those are the golden words. Visit your dentist once in a year. Yes. And believe me, they'll save you a lot of money. Save sorry. you a lot of money. Yeah. Wonderful, wonderful. But abhi there are kids who are, you know, maintaining their teeth very well. They are maintaining their hygiene. के visits भी काफी regular रहते हैं. Right. But what is the earliest stage जिसमें एक orthodontic treatment start हो सकता है? So the earliest stage जैसे मैंने बताया कि अगर एक permanent tooth है, so this is all again a part of orthodontics. एक orthodontics is not just your braces and your aligners. Orthodontics includes all these things कि जहाँ पे एक दांत आपका कहीं टेढ़ा है या ऐसे लग रहा है कि गलत जगह पे आ, we can pull that one single tooth into the correct position. One is that. दूसरा, काफी बच्चों में ये होता है कि कोई हैबिट्स रिटेन हो जाती हैं, जैसे कि माउथ ब्रीदिंग है, थंब सकिंग पर्टिकुलरली इज वेरी कॉमन कि बच्चे को अंगूठा लिए बिना नींद नहीं आती है, पेरेंट्स बोलते हैं, बट वो रात में अंगूठा लेता है. वो लॉन्ग टर्म अगर उसका वो हैबिट चल रहा है तो आपकी ओवरऑल मतलब दांत भी आपके टेढ़े मेढ़े तो हो ही रहे हैं, आपका जो अपर जॉ है वो पूरा नैरो हो जा रहा है. इट इज क्रिएटिंग बेसिकली एक वो आपका थंब जो प्रेस कर रहा है पैलेट के ऊपर उसके अराउंड आपका ग्रोथ हो रहा है, तो एकदम नैरो हो जाएगा. सो दोज कंडीशंस नीड टू बी ट्रीटेड अर्ली ऑन. अगेन डिपेंड्स के किस स्टेटस में है. किसी केस में हम वो से 10 इयर्स में शुरू कर देते हैं उसका करेक्शन, किसी केस में हम बोलते हैं कि स्टार्ट बाय 12. बट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स. कोई किसी में हम बहुत ही जल्दी शुरू कर देते हैं जहां हमें लगता है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम है, दांत का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो केसेस में हम बहुत ही जल्दी से बाय 8 और 9 इयर्स वी स्टार्ट ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि आगे जाके बिकॉज ब्रेसेस का हमें लग रहा है कि अगर हम ये करेक्ट कर देंगे तो रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इन दोस केसेस हम बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं. एंड इनफैक्ट इफ वी टेक एडवांटेज ऑफ बोन ग्रोथ तो ट्रीटमेंट रिजल्ट्स भी जल्दी मिल जाते हैं, जल्दी भी मिलते हैं और बहुत अच्छे भी मिलते हैं. वेरी स्टेबल. Very stable. Basically functionality as well as stability, when they go hand in hand, you know, your teeth will look better also and you will be able to maintain it for a longer run. Definitely. But ये तो है ही कि कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि सारे परमानेंट टीथ आ जाएं फिर एक ऑर्थो विजिट लेते हैं, बट वो चीज की जरूरत नहीं है. नहीं, वो चीज जरूरत, अपार्ट फ्रॉम जरूरत, वो चीज गलत है. आपको एक ऑर्थोडोंटिक विजिट तो करना ही करना है व्हाइल योर चाइल्ड इज ग्रोइंग, जस्ट सो दैट एक बार सारे परमानेंट. व्हाट हैपेंस इज बेसिकली आपके बॉडी में हार्मोन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. तो वन इज एट अ वेरी यंग एज, जो वो 1.5-2 साल वाला बच्चा है उसमें एकदम फास्ट ग्रोथ आने लगता है. देन देयर इज ये जो 13-14, इनफैक्ट 13-14 भी नहीं बोलूंगी मैं, बिकॉज दीज डेज अर्ली मैच्योरेशन बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी हो रहा है. 80% of the kids are going through early maturation. So I would say 11-12 years. 11-12 years पे आपका सेकंड ग्रोथ स्पर्ट आता है. हमारे टेक्स्ट बुक्स में अभी तक 13-14 ही लिखा है, बट उसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है. अभी मोस्टली द किड्स आर गोइंग थ्रू मैच्योरेशन एट द एज ऑफ 11-12. So for girls it is 11-11.5. For boys it is 12.5, 13 ऐसा. Boys का थोड़ा maturation late रहता है compared to girls. And then जो आपका थर्ड जो रहता है that is at the age of 20-21 के आसपास. So ये जो आपका एज है ना around the age of 11-12 as I said, वो एज पे आपका प्राइमरी ग्रोथ खत्म हो जाता है. जो आपका फास्ट जो बोन्स ग्रो कर रहे हैं, जो ओवरऑल आपका साइज बॉडी का जो बढ़ रहा है ना,
वो उस पॉइंट पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में बहुत ही एक बहुत ही माइनर से चेंजेस रहते हैं हाइट में और इसमें उसमें, वो थर्ड स्टेज में आता है। बट ये जो सेकंड स्टेज में है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो पॉइंट अगर आप सपोज से परमानेंट सारे एरप्ट होने का वेट करोगे, so that happens around the age of 13, आपका जो कैनाइन्स वगैरह आने होते हैं वो that happens around the age of 13। yes. तो वो पॉइंट तक आप वेट करेंगे तो आपका जो ग्रोथ स्पॉट है वो खत्म हो जाएगा, विच मीन्स प्राइमरी ग्रोथ फिनिश हो गया। उसके बाद में बोन में चेंजेस करना उतना इजी नहीं रहता है। इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट पॉसिबल, पर इट टेक्स लॉन्गर एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो। सो इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप डोंट वेट के सारे परमानेंट्स आएंगे तभी लेके जाएंगे, बच्चा अभी छोटा है। अभी तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि बच्चे के कन्वीनियंस के हिसाब से देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन ऑफर कि भाई बच्चे को अगर प्रॉब्लम इस चीज का हो रहा है तो हम इसको ऐसे टैकल करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है दैट कैन बी टैकल्ड, बट देन उसको करेक्ट एज पे करेक्ट Address करना करना बहुत चाहिए, जरूरी है। yeah. यस So when we address these issues correctly, of course we get a better result. And having said that, बहुत लोगों को है ना बहुत लेट रियलाइज भी होता है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी काफी लेट रियलाइज हुआ कि मुझे एक ऑर्थो ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओनली व्हेन आई एंटर्ड इनटू डेंटिस्ट्री आई रियलाइज्ड कि you need to get it corrected. The alignment has to be there, otherwise hygiene का problem बहुत रहेगा। So ये realization late होता है, but still the results that you get if you get it done by a good professional, of course, the results that you get वो late मिलते हैं थोड़े, maybe 3-4 months आपके ज्यादा जाते हैं, but they are good enough. Yeah, they are definitely. It's not, see that's what I'm saying कि ऐसा नहीं है कि outcome नहीं मिलेगा। In fact, we are treating patients that are 45 years old. Yeah, I know. Not with aligners, with braces, regular braces से 45-year-old patient treat कर रही हूँ मैं। And it's not like outcome नहीं आ रहा है, outcome definitely आ रहा है, but then it takes a lot of time. वो simple छोटे छोटे spaces close करने का case है, but it has taken more than a year. Whereas in kids हम ये spaces तो 6-7 महीने में खत्म कर देते हैं। Yeah, so एंड देन ओवरऑल स्टेबिलिटी जैसे हम देखें, अब वो पेशेंट में हमें रिटेंशन थोड़ा लंबा देना पड़ेगा, रिटेंशन थोड़ा ज्यादा प्लान करके देना पड़ेगा। बच्चों में उतना स्ट्रॉन्ग रिटेंशन का भी जरूरत नहीं। रिटेंशन तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी नेसेसरी, लेकिन उतना सीवियर नहीं जरूरत है जितना हमें उस एज पे देने की जरूरत है। Like Dakota Johnson took it too seriously. She mentioned कि उसको काफी टाइम तक रिटेनर्स था। Yes. And she was suffering from a neck pain. Yeah, that is because वो ग्रोथ हुआ बाद में, रिटेनर्स के बाद में। जो उनको रिटेनर्स लगा के दिए, वो रिटेनर्स उन्होंने इतने लंबे टाइम तक पहन लिए कि उनकी बोन्स ग्रो हो गए, जॉब ग्रो कर गई, बट द टीथ स्टेड देयर। तो वो एक स्पेस क्रिएट हो गया उसमें। And then when they removed it, it automatically closed. So that is what I was talking about कि हमारे दांतों में नेचुरल टेंडेंसी होती है स्पेस क्लोज करने की। तो जैसे उसमें हुआ कि रिटेनर निकाला, दांत आपस में वापस अपने एक दूसरे के साथ आ गए। So it's just like that. If you lose a tooth, your teeth will drift and they will try to close that space. Exactly that. ये हमारे प्रोस्थेडोंटिक पर्सपेक्टिव में भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Some adults they come to us कि एक ही मोलर मिसिंग है, पर चलेगा, दूसरी बाजू से खा रहे हो। I was like, no, don't take it like एक ही साइड मिसिंग है, दूसरी बाजू से चबा लेंगे। But that is a whole different topic. Coming back to the science of orthodontics, इतने टाइम से ये ब्रेसेस तो बहुत ही प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि ब्रेसेस वर्क वेरी एफिशिएंटली इन ऑलमोस्ट एवरी केसेस। यंग पेशेंट हो, 40-year-old हो, 50-year-old हो, it works. But what is the science behind this new technology which is clear aligners, जिसकी आज सब बात कर रहे हैं? So clear aligners is basically a clear material जो आपके teeth के shape का बिल्कुल proper specific set होता है, vacuum pressed होता है। What happens is, first we take a scan of your teeth. It can be either of those two. It can either be a scan or it can be an impression जो बहुत पहले से use होता है कि वो एक tray लगाया, दांतों का नाप लिया। But वो जो नाप है that is done through scans now कि वो नाप लिया था दांत का, वो अभी एक bond लगाया और लाइफ साइज आपके टीथ का मॉडल क्रिएट होता है। एंड ऑन दैट मॉडल वैक्यूम प्रेस्ड ट्रेज होते हैं जो ग्रेजुअली, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अपने पास एक प्री आउटकम है, एक हमारे पास प्री ट्रीटमेंट है कि भाई दांत अभी ऐसे हैं। वी प्लान द होल थिंग बिफोर हैंड। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही हम पूरा प्लान करते हैं कि हमें ये टीथ को ये पोजिशन पे लेके फिनिश करना है। सो वो जो प्लान क्रिएट होता है
वो प्लान के हिसाब से ट्रेज वन बाय वन क्रिएट होती है कि यहाँ से हमें यहाँ तक लेके जाना है ना. ईच ट्रे हैज अ लिमिटेशन कि वो इतना ही दांत को मूव करेगी. जो फोर्सेस के हम बात किए थे कि एक ट्रे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फोर्स ही लगा सकती है, वहां पे वो फिनिश होता है. देन यू हैव टू चेंज इनटू अ न्यू ट्रे. वो ग्रेजुअली ट्रे बाय ट्रे आपके दांत धीरे धीरे जो प्लान्ड पोजिशन है वहां पे आपके दांतों को लेके जाता है. द गुड थिंग विद दिस इज कि आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही देख सकते हो कि आपका ट्रीटमेंट किस पॉइंट पे फिनिश होगा. दैट इज ऑफ कोर्स अ मेजर बेनिफिट. उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं which we'll get into. Yeah. So this is a form of AI which has come into the field of dentistry. It is a form of AI, but it also has a lot to do with your orthodontist. क्योंकि सॉफ्टवेयर को ये मालूम है कि मुझे ये दांत को कहाँ फिनिश करना है, बट इज इट एक्चुअली पॉसिबल? क्योंकि कोई एक दांत कितना मूव करेगा वो सॉफ्टवेयर को नहीं मालूम है. पेशेंट का पेरिडोंटल कंडीशन माने गम हेल्थ कैसा है, बोन हेल्थ कैसा है, वो भी उस सॉफ्टवेयर को नहीं मालूम है. So I don't know if you've come across this at-home aligners. Those are like scam. Yeah. The scams are becoming a scam these days. This is not a UPI scam. This is a scam which is going in the field of health, specifically around your teeth. कि वो आपको ये कहते हैं कि हम आपका घर आके स्कैनिंग करके जाएंगे एंड यू विल गेट योर अलाइनर्स एट होम, और वो काम कर जाएगा 6-8 महीने में आपको सीधे दांत मिल जाएंगे. Now I don't know in which universe this is possible. Dr. Naisargi, it's funny. Every time this ad comes, मेरे को इतना हंसी आता है देख के कि they're just sitting at home and वो उनको घर पे भेज दिया कि इसका measurement लेके हमको दे दो. They're sending those tray homes because nobody is looking at what is actually going on inside the bone. There are no X-rays done क्योंकि X-ray नहीं करोगे that इतना कुछ हो सकता है. अंदर आपको कोई इन्फेक्शन अंडरलाइंग हो सकता है, या फिर आपके किसी एक टूथ का कोई रूट में कुछ रिजॉर्प्शन, there could be a cyst inside there. एंड अगर वो इग्नोर करके अगर आपने टीथ मूव करना शुरू कर दिया, इट इज अ गॉन केस. यू लूज योर टीथ, यू लूज. they don't address the impacted teeth. नहीं, हमने अभी डिस्कस किया कि कोई अंदर दांत फंसा हुआ है, से मिल्क टूथ का वो स्पेस क्लोज हो गया पूरा, परमानेंट टूथ अंदर फंसा हुआ है. इनफैक्ट कभी कभी स्पेस क्लोज नहीं भी होता है ना, तो भी इम्पैक्टेड टीथ, इम्पैक्टेड इज जो दांत हड्डी के अंदर या है ना, तो वो कई बार ऐसा होता है कि डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग राइट फिर भी कोई एक दांत अंदर फंसा हुआ रह गया. अभी वो दांत ऑलरेडी हड्डी के अंदर है वही, और रूट्स आर जो आपके इरप्टेड टीथ हैं उनके रूट्स के पास वो दांत पड़ा हुआ है. अभी आप सोचो कि वो दांत ऑलरेडी वहां है, उसके साथ आप ये जो दांत है जो इरप्टेड है उनको मूव कर रहे हो, वो आपस में टकराएंगे, रिजॉल्व होंगे, व्हाट विल हैपन? यू लूज योर परमानेंट टीथ. या जो ऑलरेडी इरप्टेड है वो भी लूज करोगे. जो अंदर फंसा है वो तो बाहर नहीं आ रहा है, वो तो नोबडी इज कंसर्न्ड विद दैट टूथ कि भाई वो अंदर फंसा है, उसे भी बाहर निकालने की जरूरत है. जो ऑलरेडी बाहर है वो भी खराब हो रहा है. सो दैट इज अ हॉरिबल थिंग कि हम ये सोचें कि सॉफ्टवेयर है तो सब मैनेज हो जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर डॉक्टर के इनपुट्स बहुत जरूरी हैं. एंड अलाइनर्स बेसिकली लैब में मैन्युफैक्चर होते हैं. मल्टीपल लैब्स आर डूइंग इट. इनिशियली एक ही लैब था who were the pioneers, इनके पास अपना खुद का वो पेटेंट था उसका. So they were the only ones, Invisalign, we've all heard about it. Yeah. They were the ones doing it. And then जैसे उनका पेटेंट फिनिश हुआ, अभी बहुत सारे लैब्स मैन्युफैक्चर करते हैं. बट देन वो लैब्स डॉक्टर के इनपुट्स कितना अच्छे से अपने मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कितना ज्यादा, जैसे उनको बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर टूथ इतने फोर्स में यहाँ तक ही मूव होना चाहिए, वो एक्चुअली वो लोग कितना ट्रीटमेंट में लेके आ रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you're not able to incorporate what doctor says, then the technology fails at the base point only. Yes. क्योंकि I don't know about others. We have done maximum cases with Invisalign only. Yes, I prefer. Yeah. Same here. So एक promised result would be, you know, even if it's expensive by X amount, but if they are giving a promised result, if they are giving a consistent result, that is more important for a patient than, you know, कुछ छोटा मोटा खर्चा ज्यादा आ भी गया. क्या होता है पता है कि व्हाट हैपेंस इज कि आपने एक चीपर ऑल्टरनेटिव ले लिया, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ ये दांत इधर से इधर पहुंच जाएगा, आपको पहले दिखा दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये ऐसे हो जाएगा, बट देन द मटेरियल इज नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द होल थिंग. तो फिर वो ट्रीटमेंट आपको दिख भले रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि इतना अच्छा हो जाएगा, बट वो एक्चुअली ट्रैक नहीं करेगा. योर टीथ विल नॉट कोऑपरेट विद द मटेरियल.
ओके, सो आउटकम नहीं आया, फिर क्या होगा, फिर आप सोचेंगे कि अरे ये तो हुआ नहीं, यू अगेन पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट। उससे बेटर है कि आप पहले से ही एक करेक्ट Yeah. ऑप्शन चूज करिए। यू मे फील लाइक कि इनिशियली आप थोड़ा सा ज्यादा पे कर रहे हैं एंड द कॉस्ट इज एक्चुअली वेरी रीजनेबल। आई मीन वो रीजनेबल इन द सेंस कि जो आपको सामने उसका आउटकम मिल रहा है ना, that is it is worth it. It is worth it. Yeah. Truly. Yeah. But still, having said that, ये जो Invisalign है, there are some aligners जो locally भी manufacture हो रहे हैं, but for some cases they are good enough. Yeah. Mild moderate cases में इतना issue नहीं आता. Definitely. Your orthodontist can guide you क्योंकि they have worked with all these labs, उनको मालूम है कि कौन सा किसका क्या कितना potential है. So then कभी कभी ऐसे होता है कि कोई केसेस बहुत ही बेसिक होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वो ऑप्शन देते हैं। बट देन अगेन आखिर तो सब कुछ वहां जाके खत्म होता है कि आपका डॉक्टर क्या समझ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी समझ रहा है एंड वो प्रॉब्लम्स कितना अच्छे से वो लैब को कन्वे कर पा रहा है। ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट चाहिए इट शुड बी सस्टेनेबल फॉर लाइफ। बट ये जो क्लियर अलाइनर्स है, ब्रेसेस है, इफ वी हैव टू यू नो वे द प्रोज एंड कॉन्स कि अभी चलो ठीक है ब्रेसेस भी तो सही रिजल्ट दे रहा है ना, देन व्हाई टू चूज क्लियर अलाइनर्स? सो आउटकम वाइज देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स नॉट लाइक वन इज बेटर देन द अदर। ब्रेसेस एंड अलाइनर्स दोनों ही आपको आउटकम मोर और लेस सेम देंगे। डिफरेंस कहाँ आता है? वन इज ट्रीटमेंट टाइम। एक तो अलाइनर्स दे वर्क, उनका जो मैकेनिक्स है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रेसेस। सो वहां पे आपको एक पहले इनिशियल अलाइनमेंट का वेट नहीं करना पड़ता है टीथ मूव करने के लिए। सो देन वो डायरेक्टली मूवमेंट चालू हो जाता है। सो दे वर्क फास्टर कंपेयर टू योर ब्रेसेस, दैट इज वन। दूसरा ये है कि दे आर वेरी कंफर्टेबल। ब्रेसेस में देयर सो मेनी इनकन्वीनियंसेस, आपको कहीं वायर चुभ रहा है, कहीं कुछ चुभ रहा है, वन इज दैट, या फिर आपको खाने में रिस्ट्रिक्शंस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके डॉक्टर इमीडिएटली आपको बोल देंगे क्योंकि ब्रेसेस करा रहे हो, स्टॉप योर पिज्जाज, स्टॉप योर पानी पूरीज। ट्रू, आई नो दिस। विद योर अलाइनर्स बिकॉज वो रिमूवेबल हैं, व्हेनेवर यू आर हैविंग योर मील्स यू आर सपोज्ड टू रिमूव इट। तो आपको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट व्हेनेवर यू वांट। तीसरा, विजिबिलिटी। ब्रेसेस एकदम दिख रहे हैं मुंह के ऊपर, मेटल दांत के ऊपर लगा हुआ है। These are clear, crisp, clear trays. जो दांत के ऊपर, even if you and I are sitting this close, I'll probably not able to figure out कि आपने aligners पहना हुआ या ऐसा कुछ। So aligners में ये है। तीसरा, चौथा next was कि less visits। aligners में क्या है, आपका ट्रीटमेंट आउटकम पहले ही प्लान हो गया और वो प्लान के हिसाब से आपको पहले से हमने ट्रेस दे दिया। So your visits reduce ड्रास्टिकली। ब्रेसेस में आप वंस अ मंथ एवरी टाइम आ ही रहे हो, महीने में एक बार, इनफैक्ट कभी कभी 20 डेज में भी बुलाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट की। एक महीने में नहीं तो वंस इन 20 डेज ऑल्सो आई समटाइम्स कॉल माई पेशेंट्स हु आर गेटिंग देयर ब्रेसेस डन। विद अलाइनर्स दैट इज नॉट द केस। एक साथ ही आपको सारे ट्रेस मिल गए, you have to wear it, you have to remove it, and then particularly with Invisalign अगर हम बात करें तो it comes with application in your phone. The virtual monitoring becomes so easier. It is brilliant. वो फोन में आपके एप्लीकेशन है, उसमें आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स भी आ रहे हैं, उसमें ट्रैक भी हो रहा है, व्हाटएवर यू आर लॉगिंग इन वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास पहुंच रहा है। सो पेशेंट इज इन अफ्रीका बट आई कैन मॉनिटर फ्रॉम हियर कि सब ठीक चल रहा है, क्या स्टेटस है, कौन से दांत पे अलाइनर कितना फिट हो रहा है, कहीं कुछ लूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है अलाइनर पकड़ छोड़ रहा है, कुछ भी है, इमीडिएटली वी कैन लुक इनटू इट। बाकी तब तक आपको आने की जरूरत नहीं है। क्लियर अलाइनर्स has covered almost every spectrum of orthodontics, but still there are some complicated cases जिसमें you know you straight away say कि नहीं इसमें हमको braces ही करना पड़ेगा। So at this point what are those cases आपके हिसाब से? That is true. It is like aligners ने majority cases cover किए हुए हैं। We still say कि although these aligners they claim कि we can do anything and everything, but then there are certain cases जैसे कहीं पे हम बोले कि जैसे अभी बात किया था हमने, दांत अंदर फंसा हुआ है, बोन के अंदर फंसा हुआ है, यू हैव टू पुल दैट आउट। तो जो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर क्लियर अलाइनर्स ऑल्सो, तो भी उसके साथ में एक कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहेगा, बिकॉज दैट अटैचमेंट इज व्हाट विल बी यूजिंग टू पुल दैट टूथ आउट।
अंदर है उसको हमें खींच के नीचे लाना है, आर्च में लेके आना है, देयर विल बी सम अटैचमेंट दैट विल बी देयर. ओके, सो इन दोज केसेस एक वो क्लियर वाला चीज नहीं रहता है. बाकी देयर आर सर्टन केसेस, वेरी लेस आई वुड से, aligners these days are doing pretty well, but there still are certain cases जहाँ पे हम खुद ही देख के बोलते हैं कि ओके अभी आप aligners के लिए ऑप्ट मत करिए, इट इज बेटर टू गो विद ब्रेसेस, बिकॉज ब्रेसेस में क्या है कि डॉक्टर के पास एक कंट्रोल है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट. अलाइनर्स में इट इज एट द बिगिनिंग, जब आप प्लान कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान उस तरीके से करें कि आउटकम फाइनली जो आप सोच रहे हैं वैसा आए. ऑल्दो अलाइनर्स में भी एक पॉसिबिलिटी है कि जब कभी ऐसा लगे कि कहीं ट्रीटमेंट में कुछ चेंज करने की जरूरत है, वी कैन अगेन स्कैन एंड ऑर्डर न्यू सेट्स ऑफ अलाइनर्स, दैट इज पॉसिबल. बट उतना कंट्रोल जो ब्रेसेस में है, बिकॉज एवरी मंथ आप पेशेंट को बुला रहे हो एंड देन वो पॉइंट पे पेशेंट किस स्टेज पे है उस हिसाब से आप प्लान कर रहे हो. सो देन वो कंट्रोल ज्यादा मिलता है, इसलिए सर्टेन केसेस भी से कि लाइक इनविजिलाइन या कोई भी क्लियर अलाइनर की बात ले लो, इट इज कंप्लायंस बेस्ड. पेशेंट कितना पहन रहा है उसको बहुत जरूरी है, कितना जुडिशियसली उसका बहुत यूज जरूरी कर रहा है. उसका टोटल वेयर टाइम है एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 20 आवर्स अ डे. 24 में से 20 से 22 आवर्स आपको उसको पहन के रहना है. अगर आप वो नहीं पहन रहे हो तो वो केसेस में देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग योर अलाइनर्स, क्योंकि उससे कम पहनोगे तो क्या होगा कि अलाइनर्स एक पॉइंट पे आपके टीथ को लेके आए, आपने फोर्स रिमूव कर दिया. अलाइनर्स इज व्हाट इज गिविंग द फोर्स. You've removed the force. Now what is happening? Your teeth are again trying to move back into their position. Relapse. Yeah. How movement happens is, say this is the root of your tooth. वो bone के अंदर ऐसे फंसा हुआ है. वो जैसे move हो रहा है, it is breaking bone on one side and new bone is forming on the other side. जब तक हम वो new bone form होने का chance नहीं देंगे, there's always the scope for the tooth to move back into its original That's position. why retention is also important. Na? Yeah. Post ortho treatment. Yes. There are some people Invisalign करवा लिया, सब कुछ हो गया. They're not coming for retainers. I know, right? We know this case. So yeah, so that is very important, क्योंकि उसमें क्या है कि इनिशियली जो बोन बना है आपका, दैट इज वेरी सॉफ्ट. इट इज वो उसमें जो है मूवमेंट अलाउ कर देता है दांत को, कि बिकॉज द टूथ हैज दैट फोर्स इन इट कि वो वापस से वो सॉफ्ट बोन ब्रेक करके मूव कर जाए. सो इट takes at least a minimum of 6 months for new hard, वो जो soft bone बनी है उसको hard होने के लिए it needs time, at least 6 months, a minimum of 6 months even in young children. So then वो cases में अगर आपने retention नहीं दिया, जो आपके लिए डॉक्टर ने retention plan किया है, वो अगर आप नहीं कर रहे हो, आपके दांत वापस से उस जगह पे चले जाएंगे. So that is how aligners also work, कि अगर आपने उसको wear time proper नहीं रखा, जैसे ही निकाल दिया वो वापस से उस पोजीशन में, तो बार बार फोर्स लग रहा है, वो मूव कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं. सो यू आर जस्ट स्टक एट दैट वन पॉइंट ओनली, यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड. सो कभी कभी ऐसे केसेस में जहां हमें लगता है कि पेशेंट या तो ऐसे प्रोफेशन में है जहां उनको बार बार निकालना पड़े या ऐसा कुछ, या फिर particularly in children, forgetful, yeah, particularly in children, in teenagers I would say, even 9-10 year old children are very compliant. वो जो है भूलेंगे नहीं अलाइनर्स पहनने को. बट ये जो 13-14 years वाले बच्चे होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे कभी कभी बहुत नॉटी होते हैं, वो खो देते हैं या ऐसा. बट देन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है फॉर अ 13-14 year old child इज बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या ऐसे बोलो वो रहता है उनका. ब्रेसेस में क्या है कि वो दांत के ऊपर लगा हुआ है, बॉल आया, लिप में कट आ गया, यहाँ कट आ गया, ये हो गया. सो देन इट गोज बोथ वेज. या इट गोज बोथ वेज. वो पेशेंट का क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और किस टाइप का उनका पर्सनालिटी है, वो देख के ही फाइनली आप गेज कर सकते हैं कि इनको अलाइनर देना है या ब्रेसेस देना है. True. Like that. So it was very insightful. I think काफी concepts clear हो गए हैं मेरे भी, और आई थिंक लोगों के भी जो ये पॉडकास्ट देखेंगे या आपको सुनेंगे. So thank you so much for giving us this good insight about how these work and what are the good systems that one can implement, how to prevent this. सबसे important discussion हमारा वो है कि ये आप प्रिवेंट कैसे करेंगे. विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन अ ईयर. अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स. एंड वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर नैसर्गी मेहता फॉर बीइंग विद अस on this, for being on this, and thank you all for watching.
the Smile Podcast. Don't forget to like, share, and subscribe to the Smile Podcast.